what we have discussed in the last lecture, and then further we continue this lecture. So in the last session we have discussed this question, if you exactly remember. याद आ रहा सभी को? ये क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था? एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, यस, दिस क्वेश्चन, राइट. I think it is clear to everyone. In the last session I have given this as an assignment. I do not know how many of you have done this. It is clear. Please let me know how many have you solved and know this is the correct answer. Means only basically in this option number D is only the correct option. Why? Because just see, the question is which of the following is two-dimensional subspace, right? Which of the following is two-dimensional subspace? One more information, this is the 5th lecture. You just refresh your shared folder, right? You just refresh your shared folder. I have already shared up to lecture number 4, right? All the recorded lecture has already been shared in the same folder. You just refresh and get all the previous 4 lecture, right? It is clear. उसी फोल्डर में पड़ा, आप रिफ्रेश करिए, आपको मिल जाएगा. Now see, in the last session we have discussed this question, and the question is which of the following is two-dimensional subspace of R3, right? Of R3. So for the first option, it is very clear that if you just take common x, then you will get only one basis, right? Only one vector which will form the basis, only one vector which is independent, right? It is clear? Please let me know. So its dimension is what? Dimension of the first one is 1, right? It is clear. Now if you talk about the third one also, we just look. The third one, option number C says, option number C is basically what? X, Y, 0, X, Y is belong to R, X, Y, Z, and this X, Y belong to R, and there is one more condition is given, that X plus Y is 0, right? X plus Y is 0. There is no confusion on this option number A and option number C, I think, because it is very clear. Now just see, this is basically X, Y, Z, and you can write this X, Y, Z as a X plus Y is equal to 0. So what you can write? In place of X it is okay, in place of Y you can write minus X, right? So this is minus X and Z. Now see, what about the dimension? So once you take X common, in that case 1, minus 1 and 0, right? And plus once you just take Z common, in that case it will be 0, 0, 1, right? It is clear. So if you talk about the basis, so only two element, two vectors, right, for this case. It is clear. अच्छा, सी को हमने क्या बताया था, याद आ रहा है? यस, सी में जेड के प्लेस पे 0 सर. हाँ, जेड के प्लेस पे 0 है, ठीक है. अच्छा 0 है, देखो मैंने, ठीक है, यहाँ पे तो 0 है, मैंने 1 लिख दिया है. रुको थोड़ा सा, यहाँ पे ये 0 है ना, पहले से 0 है, राइट? तभी तो मैं सोच रहा हूँ कहाँ से आ गया. सो यहाँ जेड जैसा कोई टर्म आएगा ही नहीं, राइट? इट इज़ क्लियर. देखो ये यहाँ से it is clear now. I think now it is clear. Only we are getting what? यहाँ तो इसको तो लिखना ही नहीं था, ये तो कुछ और था. देखो x minus x and 0, and once you take x common you will get only one independent vector. So again for the option number C, again we are getting dimension is what? 1, right? It is clear. Please let me know. These two options are clear. Dimension in option number C is 1, and in option number
A is 1. So these two options discard because it talk about two dimensional subspace. Now if you look the last option, it is very clear that once you just take x as a common, in that case it will be 0 1 0 and plus z common loge, in that case it will be what, 0 0 1, right? So the basis set is what, the basis set is 0 1 0 and 0 0 1, right? It is clear. Dimension of D is basically what, it indicate 2. So this option is correct. Now we talk about what about option number B, right? एक चीज और ध्यान देना, डायमेंशन तो है ये सब स्पेस भी फॉर्म कर रहा है कि नहीं, ये भी एक चैलेंजिंग टास्क है. सो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सब स्पेस भी फॉर्म करेगा. कोई भी आप अगर देखो पहला एलिमेंट जीरो है, कोई भी दो वेक्टर्स लेते हो जिसका पहला एलिमेंट जीरो है, फर्स्ट टपल से जीरो, once you add you will get again what, the zero, right? So there is no issue with the subspace. Now we talk about this option number B, right? एक मिनट थोड़ा सा वेट करना. Now see option number which one, B. देखो B पे X और Z प्लेस पे, राइट? इफ यू जस्ट थिंक ऑप्शन नंबर B, then it says the vector is 0 x 0 I think, such that x is belong to the set of real number. Yes, and union 0 0 y such that y is also belong to the set of real number, right? Now we have to find the dimension of this one. Dimension of this is also the set, but the set is what, union of two set, right? It is clear. So what is the meaning of dimension? Just we have seen, if we talk about any set, what about the dimension? Number of what, number of elements in their what, in their basis set, that is the dimension. Now first we check the types of element in this. So देखो इसके जो भी एलिमेंट होंगे इस सेट के ऐसे होंगे, 0 x 0 एंड व्हाट, यूनियन लोगे तो ऐसे ही सारे एलिमेंट आएंगे ना. देखो, अरे हाँ ना बोलो, यूनियन का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल दोस एलिमेंट. तो ये आपको अगर ऐसे देखो तो आपको दिख रहा है इसका डायमेंशन 2 है, राइट? अरे दोनों क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट है. अगर मैं बोलूँ कि इसका डायमेंशन क्या है, 0 1 0 कामा 0 0 1, सो इसका डायमेंशन क्या होगा, देयर हैज टू इंडिपेंडेंट वेक्टर, सो इट्स डायमेंशन इज 2. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, नॉट ओनली टॉक अबाउट द डायमेंशन. कहाँ चला गया? यस, दिस टॉक अबाउट टू डायमेंशनल सब स्पेस. किसकी बात कर रहा है, देखो किसकी बात कर रहा है, सब स्पेस. अब नाउ द क्वेश्चन इज वेदर इट इज, देयर इज नो डाउट इट इज dimension of this set is 2, but whether this will form the subspace, that is the also the question mark. Now let's suppose you have these two element and you have already seen कि if we have कोई भी एलिमेंट इसका इसी टाइप का होगा, किस टाइप का, 0 1 0 0 0 2, मतलब जो भी होगा वो कहाँ कहाँ किस किस पोजीशन पे होगा, केवल सेकेंड टपल्स एंड थर्ड टपल्स पे होगा. बाकी क्या होगा, देखो या तो सेकंड या तो थर्ड पे होगा, कभी भी और पोजीशन पे नहीं आ सकता इसके जितने भी, क्योंकि यही तो दे रहा है एक्स एंड वाई आर फ्रॉम आर एंड फॉर द फर्स्ट वेक्टर अल्फा 1 अगर लोगे तो कोई भी एलिमेंट होगा वो 0 और फर्स्ट टपल्स और थर्ड टपल्स 0 होंगे, राइट? सो द डिफिनीशन ऑफ द वेक्टर सब स्पेस इज सेट व्हाट, if we have a two vectors alpha 1 and alpha 2, and once we just do the linear combination, they must belong to this S. There are two conditions basically. First is 0 vector must be belong to that set. This is the first, and the second says if we have a two element of this set and once we do the linear combination, it will again lie on the same set, right? Please let me know it is clear.
अब now we check whether these two conditions are satisfied for this condition, because we have to not only check the dimension but also the subspace. So if you talk about zero subspace, तो zero तो lie करेगा. Why? Because x is from real number, right? So zero is also the real number, so we can take zero vector is belong to, that's it. So the first condition of the vector subspace is satisfied, right? Now we check the second whether this is satisfied or not. So once you add the two element, let's suppose this element is like 0 1 0 and the second element is like 0 0 1, right? And once you add these two vector, right, so what you will get? You will get 0 1 1. Now the question is whether this will lie in this set S. No. Why? Because its element are like this, either 0 some 0 this x, that is नॉन जीरो पॉसिबल है. यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है 0x0 टाइप का होगा, मतलब पहला टपल्स और सेकंड टपल्स जितने भी एलिमेंट होंगे, ऑल द एलिमेंट आर लाइक, ऐसे हो सकता है 0 2 0 0 3 0 like this, or the second element 0 0 y करोगे, so 0 0 2. But this type of element can never be lie in this set, right? So पहला कंडीशन तो satisfy कर रहा है, but the second condition is not satisfy, and hence this is clear that this set has a dimension 2. Sorry, this कहाँ चला गया? Yes, this set has a dimension 2, but it will not form what? Subspace. It is clear? सभी एक बार रिस्पॉन्ड करेंगे. दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? So sometime about I think 95% people have given the wrong option. सभी ने याद आ रहा है कल? बहुत सारे लोगों ने कर नहीं पाए. तो देखो, आप क्वेश्चन को पहले बहुत क्लियरली पढ़ेंगे, एक एक लाइन, सिर्फ अंधाधुन ये नहीं पढ़ना है 2 डायमेंशन है, इसके साथ साथ और पढ़ो आगे क्या लिखा हुआ. 2 डायमेंशनल सब स्पेस की बात कर रहा है, राइट? अगर ये कहता है 2 डायमेंशनल सेट, राइट, आर सबसेट, there is no issue at all, right? We also adopt option number B is correct. But if we talk about the subspace, we have to also, और ये पता है कहाँ आया था? ये जैम में आया हुआ है, IIT जैम का एग्जाम में. इट इज क्लियर टू एवरीवन? अगर किसी कोई 1% भी डाउट हो तो बताएं मुझे. This question is clear that I have given in yesterday class, but I do not know how many of you have solved this question. It is clear? Yes, sir. Clear. So let's see the next question, and one more question I just give you all, and then we move on the CSIR question paper. So this question has been solved. Yes, one more result. This is also very important theorem, and based on this several question asked in both CSIR as well as in GATE. So the theorem says if W1 and W2 are two subspaces of a finite dimensional vector space, अच्छा एक क्वेश्चन किसी ने, अर्चना आपका क्वेश्चन क्या, अनम्यूट कर सकते हो आप? अर्चना का क्वेश्चन ये है कि हाउ, बोलो बोलो अर्चना. सर ऑप्शन डी का इस्तेमाल करेगा सर. अच्छा सबस्पेस. चलो ठीक है, मैं सबसे पहले ये पूछता हूँ कि ऑप्शन नंबर डी कैसे सब स्पेस नहीं फॉर्म करेगा. क्वेश्चन से पहले मेरा एक और क्वेश्चन है, पूछ सकता हूँ या नहीं पूछ सकता, कि ये पहले आंसर ही दे दूँ तुरंत? देखो ये आपके पास अर्चना इज सेइंग कि सर हाउ, ये क्या था, एक्स वाई, जो नोटेशन है वही लिखता हूँ यार, एक्स जेड लिखा हुआ है, सो आई जस्ट राइट द सेम थिंग, एक्स जेड such that x and z are belong to this set of real number. Anyone can reply? Not Archana. Anyone? This will form the vector space or not? वेक्टर स्पेस है सर. Anybody? Anybody else? कैसे? देखो अर्चना जादव, there are two conditions, right? There are two conditions. जीरो वेक्टर है कि नहीं? Yes, yes, just
zero vector must be belong to that set. Let's suppose I just rename W4, right? Whether the zero vector will belong to this, and second, if we are taking two vectors alpha 1 and alpha 2 of this W4, then once we do the linear combination a alpha 1 plus b alpha 2, that must be belong to that, Belongs to W4. right? Now zero, whether zero vector is belong to that set or not, very clear, zero vector will be there. Why? Because x and z are from where? From R. Just see. And zero is also where? Zero is also what? On the real line, right? It is clear. This is also from where? From R. So we can take zero vector is there. 0, comma 0, comma 0 is satisfied. So the first condition is basically satisfied. What is the problem? And second, you can multiply by any of the scalar, right? You can multiply by any of the scalar, root 2, root 3 or whatever, right? So you will always get this first term will be always 0, second term 2x which is also real number, 2z which is also real number. It is clear, because it is defined over set of real number. And even you have a two vector like 0, 2, 5 and comma 0, 5, 7 like this, and once you add these two, the first tuple is always 0, right? Second and third, that is from R, there is no issue, right? But the first tuples must be 0 and this is satisfied. Why? जब पहले ही आप इसके कोई भी एलिमेंट उठाओगे तो उसका पहला टपल्स क्या होगा? पहले से 0 होगा, तो ऐड करोगे तो भी वही मिलेगा. ठीक है अर्चना? नहीं, कोई डाउट हो तो आप बताओ मुझे. No sir, clear. Now see this theorem. This is also very important theorem. W1 and W2 are two subspaces of the finite dimensional space V over the field F. Then dimension of W1 plus W2 is equal to dimension of W1 plus dimension of W2 minus dimension of W1 intersection W2, right? This question is clear. This theorem is clear to everyone. सभी को क्लियर है? हेलो, क्लियर है सभी? अब इसमें अब देखो, इसमें एक और चीज़ है. जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे, और मैं आपको क्वेश्चन देने भी जा रहा हूँ, देर आर, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस वन. ओके, नो इशू. एंड नाउ सी द सेकेंड वन. पहले इसको देख लेते हैं और फिर प्रॉब्लम पे आते हैं. नाउ सी दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. मैं आपको दिखाता हूँ कई CSIR के प्रॉब्लम इन सारे रिजल्ट पे आएगी. W1 एंड W2 आर फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V. देन द सम, देखो अगर ऐसे करते हैं, इज फाइनाइट डायमेंशनल. अगर W1 और W2 दोनों फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैं तो दोनों का सम भी क्या होगा? फाइनाइट डायमेंशनल होगा, राइट? और एक चीज़ और ध्यान देना, ये जो होगा W1 प्लस W2, ये स्मॉलेस्ट सब स्पेस है क्या? कंटेनिंग W1 यूनियन W2. ये स्मॉलेस्ट सब स्पेस है. अभी क्या इसका मतलब है, क्यों ऐसा कह रहा हूँ, ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा. देखो, जब भी W1 और W2 दो सब स्पेस है, राइट? लेट सपोज कर लो ये हमने लिया x y z, राइट, फ्रॉम R3. ऐसे भी लॉजिकली समझ सकते हो. एंड W2 इज बेसिकली y z t. अब बहुत सारे लोग ये समझने लगते हैं, जस्ट सी दिस इज ऑल्सो फ्रॉम R3, राइट? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. इफ यू ऐड दीज टू वेक्टर, इट डजेंट मीन कि इसका डायमेंशन जो है 6 हो जाएगा. देखो, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये कहाँ से लिया गया है? 3 टपल से. दोनों कहाँ से हैं? 3 टपल से. तो जो इसका सबसे बड़ा डायमेंशन होगा, ऐड करने के बाद भी वो क्या होगा? बता मुझे. हेलो, अरे अगर दोनों को ऐड करते हो, कहाँ से लिया गया है? दोनों से ही तो लिया गया है. कहाँ से? R3 से. तो उससे बड़ा नहीं होगा. इस पे भी अभी प्रॉब्लम आएंगे और डिस्कस करेंगे. जस्ट वेट फॉर दैट, राइट? तो कभी भी अगर आप दो सब स्पेस को ऐड करते हो तो ये ना सोचो कि इसका डायमेंशन 3 है
और इसका भी डायमेंशन 3 है. सो वंस वी ऐड द डायमेंशन बिकम 6. नॉट, दिस इज नॉट, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट. वाई? बिकॉज बोथ आर टेकन फ्रॉम R3 स्पेस, राइट. तो अगर दो एलिमेंट को, दो अलग अलग पॉइंट को ऐड भी करेंगे तो कभी भी इससे बड़ा स्पेस में नहीं जा सकता, मतलब इसका डायमेंशन 3 से बड़ा नहीं होगा, राइट. ये तो सभी को पता है, अगर दोनों सभी स्पेस इसी से लिए रहे तो कहाँ से बड़ा हो सकता है, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट. इट इज क्लियर. इन द सिमिलर वे इंटरसेक्शन भी लोगे तो भी देखो यहाँ लिखा हुआ है दोनों के बराबर या उससे जो डायमेंशन होगा उससे ऑलवेज छोटा होगा, राइट. इट इज़ क्लियर. और यहाँ देखो एक और डायमेंशन, ये दोनों फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है. डायमेंशन इंटरसेक्शन का भी कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, 0. दोनों को ऐड करेंगे डायमेंशन आप देखो मैक्सिमम आप 0 डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ V. जो सब स्पेस है उसके डायमेंशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे. जैसे यहाँ R3 से लिया गया तो इसका डायमेंशन यहाँ V की जगह बेसिकली 3 है, और W1 W2 तो अलग से आप डायमेंशन लेंगे. सो इसके बारे में भी अभी ड्रॉ करके भी फिगर आपको मैं बताऊंगा व्हाट इज़ द मीनिंग. लेकिन आपको ये क्लियर हो गया कि वंस वी ऐड, once we take union, once we take intersection, it can never be greater than its own, right. अपने से बड़ा नहीं हो सकता. It is clear. Please let me know. अच्छा, अब कुछ प्रॉब्लम देखते हैं पहले. सर एक क्वेश्चन है. सर अभी जो दोनों कंडीशन इंटरसेक्शन का बताए हैं डायमेंशन वाला, तो उसको मतलब फर्स्ट वाले को किस कंडीशन में यूज करेंगे और सेकंड वाले को किस कंडीशन में? देखो आपके ऊपर ना, ये प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करेगा कि सिर्फ W1 और W2 दिया. अगर आपसे क्वेश्चन में कहीं पूछ दिया, इस तरीके का क्वेश्चन है कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज लेस देन, ऐसे कहीं ऑप्शन में लिखा है, तब तो आप डायरेक्ट. अगर कहीं लिखा है डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू, एग्जैक्टली अगर बताना है तो दोनों कंडीशन को यूज़ करना पड़ेगा. कहाँ पे लेस देन है, कहाँ पे ग्रेटर देन, एग्जैक्टली तभी आपको पता चल पाएगा, राइट. इट इज़ क्लियर. और इसके लिए बेटर ये है कि अगर एग्जैक्टली निकालना है तो इस फार्मूले का यूज़ करो. इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है ना, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, राइट. ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करेगा. अभी जब मैं प्रॉब्लम होंगे तो भी डिस्कस करूंगा किस टाइप के प्रॉब्लम में कहाँ रिक्वायरमेंट है, राइट. कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिर्फ डायमेंशन ऑफ W1 W2 दे दे, राइट. सो उस कंडीशन में आप अगर कहीं ऑप्शन में है, मान लो ऐसे देख लो, प्रॉब्लम बहुत आसान सा, इसमें तो कोई बट नहीं है. अगर लेट सपोज कर लीजिए आपको ऐसा प्रॉब्लम देते, W2 इज द स्पेस 0 x, राइट, x इज एलिमेंट ऑफ दिस R, या यहाँ y भी कर दो, राइट. और W2 इज बेसिकली x z0. अब मुझे बताओ इसका W1 का डायमेंशन क्या है, बताओ. 2 होगा. इसका भी डायमेंशन क्या है, W2 का, ये भी 2 है. अब आपसे कहीं कोई ऑप्शन पूछ दे कि डायमेंशन आप, तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट. सम टाइम जस्ट सी देते ये 1, लेट सपोज कर लो. देखो मैं हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग द एग्जैक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे फिर कैलकुलेट करेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे, और ये कहाँ से लिया गया, R3 से लिया गया. फिर इंटरसेक्शन निकालेंगे और देखेंगे कौन सा एलिमेंट कॉमन हो रहा है, उस प्रॉब्लम पे भी आएंगे. अगर ऐसे कहीं दिया है 3 4 C4 एंड ऑप्शन नंबर D इज बेसिकली 5, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट. क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए. देखो ये हाइपोथेटिकली मैं वैल्यू ले रहा हूँ, यहाँ पर एग्जैक्टली कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट. फॉर्मूले में पुट करके सर निकल आएगा. अरे यार फार्मूले में क्यों पुट करेंगे, हमें पता है इंटरसेक्शन का डायमेंशन हमेशा क्या होगा, इससे ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू होगा, राइट. मान लो इसका थोड़ी और कोई बड़ी वैल्यू दे दे. इंटरसेक्शन देखो, इंटरसेक्शन में आप इसका डायमेंशन 2 है, इसका डायमेंशन 2 है,
तो हमेशा जो भी डायमेंशन होगा वो इससे कम होगा। अभी हमने फार्मूला पढ़ा, तो हम ये 3 तो हो ही नहीं सकता, 4 तो हो ही नहीं सकता, 5 तो हो ही नहीं सकता, राइट? अरे हाँ ना बोलो। जब हमने मतलब मैं आपको फार्मूले का यूज़ बता रहा हूँ, जब हमें पता है इट्स वैल्यू इज लेस देन व्हाट डायमेंशन ऑफ W1 एंड डायमेंशन ऑफ W2, देन व्हाई वी वेस्ट आवर टाइम टू डू दिस एक्टिविटी कि चलो मैं 1 निकालता हूँ, दोनों का इंटरसेक्शन निकालता हूँ, फिर दोनों का सम निकालता हूँ, वी कैलकुलेट दिस थिंग। व्हाई वी डू दिस थिंग्स, राइट नेहा? यस सर। तो जहाँ जैसी ज़रूरत पड़े, अभी मैं ये भी प्रॉब्लम आ रहा हूँ आपके सामने, ये प्रॉब्लम जहाँ पे आपको सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, आपको देखो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 पूछ रहा है। अभी मैंने आपको फार्मूला क्या बताया, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 दैट इज़ व्हाट डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, है ना? सो यहाँ तो सब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, राइट? देन ओनली यू कैन प्रेडिक्ट अबाउट द डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, राइट? सो जस्ट वेट फॉर दैट वन। अच्छा, अभी और किसी कोई डाउट तो नहीं है इसमें? इट इज क्लियर, दिस रिजल्ट इज क्लियर टू मी? चलिए अभी जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और भी चीज़ें क्लियर होंगी, राइट? अच्छा देखो, पहले एक CSIR का प्रॉब्लम देखते हैं। yesterday I have discussed these things and today I will discuss one more result which is very important. देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है चाहो तो इस प्रॉब्लम को मैनुअली भी सॉल्व कर सकते हो, राइट? यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाई 2 ways। पहला तरीका आपको जो रिजल्ट बताया उससे, दूसरा तरीका आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, राइट? कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, आर यू कैन टेक द काउंटर एग्जाम्पल, राइट? First way you can directly use the result and get the answer. Second way you can directly use counter example and by counter example you can also discard the option, right? It is clear. So देखो क्या कह रहा है, कह रहा है डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस। अच्छा, जब आपको फार्मूला ना पता हो, थ्योरम ना पता हो, कुछ भी नहीं पता हो, तो कोशिश करो काउंटर एग्जाम्पल लेके, जैसे यहाँ पे वो सारे कंडीशन को लगाओ जो यहाँ स्टेटमेंट में दिया है। We just try to apply this statement, right? ऐसा counter example लेना, we have to take those counter example which satisfy the statement and based on the statement we just try to discard the option because only one option is correct. So the question is the dimension of the vector space of all symmetric matrices, right? Dimension of the vector space of all symmetric matrix means this is basically collection of all the symmetric matrix and you know what is symmetric matrix, right? Of n cross n, but we have to take the minimum order is what, minimum 2 ऑर्डर का लेके चलना है। दिया हुआ ना n is greater than or equal to 2, right? with real entries। अब देखो जितने भी, कौन सा एलिमेंट की बात कर रहा है, ai, कौन सा एलिमेंट होता है ai? कौन सा एलिमेंट है? डायगोनल एलिमेंट। कह रहा है डायगोनल एलिमेंट आर 0। ऐसा सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेना है जिसका डायगोनल एलिमेंट 0 हो और जिसका ट्रेस भी क्या हो, 0, राइट? जिसका ट्रेस भी 0 हो और जिसके सारे डायगोनल एंट्रीज 0 हो। देन आपको ऐसे मैट्रिक्स, देखो यहाँ पे मैं ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इट इज नॉट नेसेसरी ये दे कैन राइट दिस, जस्ट वेट, द क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी राइट लाइक दिस, जैसे ऐसे भी कह सकता। मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि कैसे आपसे पूछ सकता है। देखो ए कह सकता है ए इज टेकन फ्रॉम एन ओवर आर। देखो सेम स्टेटमेंट को इतना घुमा फिरा, और ये क्रिएटिविटी है, आपको बोलते हैं ना कि क्रिएटिव भी बने पड़ेगा, राइट? और यहाँ कह दे एन इज बेसिकली ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, उसके आगे ये लिख दे कि ai 0 हो जाए, देखो, और फिर कह दे ट्रेस ऑफ a 0, बस आपको ऐसे कह दे। और ये भी बता देगा a इज बेसिकली द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या उसमें ऐसे लिख सकता है aij इक्वल टू aji। इतने सारे स्टेटमेंट उसने लिख दिया। मीन्स एक सबने पढ़ा होगा सेट थ्योरी में रोस्टर फॉर्म पढ़े हो ना, एक टेबुलर और एक रोस्टर पढ़े हो ना, पढ़ा है सबने? टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। कौन इंटरमीडिएट को पढ़ाता है?
सो रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, तो ये बेसिकली इस सेंटेंस फॉर्म में जो लिखते हैं उसको सेट बुल्डर फॉर्म बोलते हैं। याद आ रहा है, ये सेट बुल्डर फॉर्म है। दिस इज व्हाट, दिस इज सेट बुल्डर फॉर्म। जब आप सेट को किसी सेंटेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड सेट बुल्डर फॉर्म। एंड वंस यू राइट इन ए सिंगल कामा, एक लाइन में आप उसको लिख दो सिंगल कामा में, देन इट इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म। तो ये इसका टेबुलर फॉर्म है, एक तरीके से समझ सकते हैं। द क्वेश्चन कैन बी आस्क इन बोथ वे। तो जरा इसको सोच के बताओ सभी, काउंटर एग्जाम्पल लेके भी देखो। अच्छा, अगर आपको लेना है काउंटर एग्जाम्पल तो मिनिमम 2x2 की मैट्रिक्स लो और एट सी मैट्रिक्स लो। यू जस्ट टेक दोज मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे n की वैल्यू मैं 2 ले रहा हूँ। देखो काउंटर एग्जाम्पल भी हमें सीखना पड़ेगा कैसे। n की वैल्यू हमने 2 लिया, राइट। अगर n की वैल्यू 2 लिया एंड वी हैव टू टेक ऐसे मैट्रिक्स जिसका डायगोनल ट्रेस क्या हो, मतलब डायगोनल एलिमेंट 0 हो और साइमेट्रिक भी हो। और देखो यहाँ एक काम करो, 1 लोगे तो यहाँ भी 1 लेना पड़ेगा ना। हाँ ना, मुझे बताओ। सो इसका डायमेंशन क्या आ गया, इसका डायमेंशन क्या है? अरे हाँ ना बोलो। 1 इसका डायमेंशन 1 होगा। 2 नहीं बताइए क्या होगा। डायमेंशन सर 2 देखो एक चीज ध्यान रखो, ये a और a है। अब बताओ, देखो a और a यही तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। 1 के बजाय इट इज बेटर वी राइट a सो दैट, चलो मैंने इतना हिंट दे दिया। अब देखते कितने लोग करते। काउंटर एग्जाम्पल भी बता दिया और कल मैंने आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायमेंशन भी लिखवाया था इफ यू रिमेंबर। यहाँ पे देखो ये 8 पॉइंट नंबर 8 याद आ रहा है। डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस कंटेनिंग n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिक्स n इंटू n प्लस 1/2। लेकिन ये भी बताया था जितने आपको कांस्टेंट दिए गए हैं उतना क्या करोगे, जितने कांस्टेंट जितने कंडीशन दिए गए हैं उतने को माइनस कर दोगे, राइट। अब इतना दोनों हिंट दे दिया मैंने। नाउ यू पीपल जस्ट सॉल्व दिस, देन आई विल टॉक टू यू। आई विल नॉट टेल रेस्ट ऑफ द थिंग्स। अच्छा अभी कोई नहीं बोलेगा। सर डायमेंशन 2 होगा, बेसिस तो अच्छा, है एक मिनट रुक जाओ। नेहा कौन है? अभी 1 मिनट एकदम शांत रहो। चलो पहले सभी को करने दो, आप भी करिए पहले, अभी कुछ नहीं बोलो, ठीक है। चलो 3 to 3 मिनट का टाइम देता हूँ। एवरीवन जस्ट रिस्पॉन्ड इन द कमेंट बॉक्स, नोबडी टेल एनीथिंग। डायमेंशन 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, सब छोड़ दो। प्लीज म्यूट योर माइक, म्यूट कर लीजिए जो भी है। प्लीज म्यूट योर माइक। कौन है भैया? Sonu Jain, just wait so that rest of the people also respond here. Last 1 minute. दोनों तरीके से करने की कोशिश करो। ये ना सोचो कि कोई आंसर दे दिया है, आप अपने ऊपर बस सोचो कि हमें कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। दूसरे के भरोसे मत बैठिए, आप अपना खुद रास्ता तय करिए कि उन्होंने दे दिया तो मुझे भी यही लगा देना चाहिए। अपने मन से जो आपको करेक्ट लगे वो तभी लर्न कर पाओगे। अगर दूसरे के अकॉर्डिंग चलोगे तो फिर कुछ नहीं लर्निंग होगी। So now I just stop this poll option. Now see how
मोस्ट ऑफ द पीपुल आर टेलिंग ऑप्शन नंबर ए. हाउ दिस ए इज ट्रू? देखो यहाँ पे वी हैव टेकन दिस काउंटर एग्जाम्पल विच सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन. डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स. दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट. एंड देखो ए आई जे कह रहा था डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, ये भी ले लिया, और कह रहा है ट्रेस भी जीरो. तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ भी ए लेना पड़ेगा ना. मुझे बताओ. सो इसके अकॉर्डिंग डायमेंशन क्या होगा? इसका बेसिस देखो क्या हुआ. अगर ए जीरो ए, राइट, ए जीरो, तो यहाँ से ए कॉमन लो तो बेसिस क्या है इसका? 0 1 1 0. यही तो बेसिस हुआ. सिर्फ ओनली वन एलिमेंट इन दिस बेसिस सेट, सो इट्स डायमेंशन इज व्हाट? 1, राइट. देखो एक ही तो एलिमेंट है उस बेसिस में, 0 1 1 0. एक ही वेक्टर है, ओनली वन वेक्टर इज देयर, so its dimension is basically what? 1, right. Now if you are putting n is equal to 2 तो 1 आना चाहिए. ऐसा कौन कौन सा ऑप्शन है? तो देखो अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करोगे पहले ऑप्शन में, तो 2 2 जा 4 प्लस 2 6 माइनस 4, राइट. 4 देखो 6, ये आ गया 2 2 जा 4 प्लस 2 6 माइनस 4, 2 आया 2/2, यू विल गेट 1 आएगा ना. अगर n की वैल्यू मैं 2 यहाँ रखता हूँ, अरे यार 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो n की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी. क्लियर? इसमें आ जाओ, ये सही हो सकता है, पॉसिबिलिटी है. ये क्या है? अगर यहाँ पे 2 रखते हो, 2 2 जा 4, सेकेंड ऑप्शन में 4 माइनस 2. तब में 2 की वैल्यू पुट की तो वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसलिए ऑप्शन 1 ही करेक्ट है. और अगर हम फॉर्मूले से देखें तो हमारे पास 2 रिस्ट्रिक्शन है, और फॉर्मूले में -2 रिस्ट्रिक्शन की, तो वही 1 फॉर्मूला बन रहा है सर. ठीक है मैम, थोड़ा सा वेट करिए, ये चेक कर लेते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं सबके लिए. सो 2 2 जा 4 माइनस 2, दैट इज 2, 2 प्लस 4 6/2. यहाँ पे 3 आ रहा है, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि डायमेंशन 1 आना चाहिए. अगर यहाँ पे रख रहा हूँ 2 2 जा 4 प्लस 2 6 माइनस 3 3 3/2, ये भी नहीं हो सकता. डायमेंशन कभी भी डेसिमल में हो नहीं सकता. लास्ट ऑप्शन इज बेसिकली व्हाट? 2 2 जा 4, जस्ट सी, 2 2 जा 4 minus 1, 3 plus 3, 6/2, that is also coming 3, so that is also not possible, right. अरे हाँ ना बोलो. सो क्या हुआ? ओनली ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. इट इज क्लियर. अगर देखो, अगर यहाँ फिर हमें कोई डाउट होता तो एक काम करते, हम इससे थोड़े से हायर ऑर्डर पे जाते, मतलब 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स बनाते. तो देखो एक काउंटर एग्जाम्पल था. अब मैंने आपको एक, देखो दिस इज द सेकेंड वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट. काउंटर एग्जाम्पल. फर्स्ट वे मैंने आपको कल बताया था कि व्हाट अबाउट द डायमेंशन ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स. डायमेंशन ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज व्हाट? इफ द ऑर्डर इज n into n plus 1/2 माइनस, देखो ये फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा. जितने आपके पास कंडीशन दिए रहेंगे उतने आपको सब्ट्रैक्ट करने रहेंगे, राइट. और सब इंडिपेंडेंट होना चाहिए. तो देखो रियल एंट्रीज कह रहा है 0, पहला कंडीशन, and trace is 0. There are 2 condition is given, so you just subtract -2. It is clear. कल आपको बताया था कि रोज का अगर पहला रो का सम 0 हो जाए, 2 रो का सम 0 हो जाए, 3, तो आप उतने माइनस करते चले जाते हो. सो इन द सिमिलर वे इफ वी हैव व्हाट, अच्छा यहाँ पे एक काम करो, फार्मूला पूरा लिख ही लो. इसको बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं. तो नंबर आप लीनियरली इंडिपेंडेंट बोल सकते हो, माइनस यहाँ पे जितने इंडिपेंडेंट कांस्टेंट होंगे, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कांस्टेंट, जितने भी आपके पास कंडीशन दिए रहेंगे उनको आप सब्ट्रैक्ट कर दो. 2 कंडीशन दिया, -2. सो फाइनली यू विल गेट व्हाट? डायमेंशन ऑफ दिस स्पेसिस, इसको यहाँ से करोगे n² प्लस n -4/2, राइट. इट इज क्लियर. सो 2 तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. एक तो जो कल मैंने आपको स्टैंडर्ड बताइए. 3 cos 3 मैट्रिक्स के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है सर. अच्छा चेक कर लेते हैं. इट इज क्लियर टू एवरीवन? दिस इज क्लियर? यहाँ तक क्लियर है ना सभी को? जो आपको अभी केसेस और रिजल्ट बताया था, ये रिजल्ट, राइट. अच्छा अब एक का क्वेश्चन है कि सर 3 क्रॉस 3 के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं. तो भाई सारे लोग 3 क्रॉस 3 के लिए करके दिखाओ. ये कह रहे हैं सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. अगर मैं कोई 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लेता हूँ, राइट,
सो पहला कंडीशन आपको क्या बताया, व्हाट अबाउट द फर्स्ट कंडीशन, द डायगोनल एंट्रीज आर, सर कर रहा है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, चेक कर लेते हैं, ठीक है। डायगोनल एंट्रीज आर 0, दूसरा सिमेट्रिक है तो ये ए होगा A12, तो क्या होगा A21 भी ए होगा ना, A13 लेट सपोज कर लो बी ले लेते हैं, A13 तो ए ये भी बी होगा, इट इज सी देन इट इज ऑल्सो सी। नाउ इसमें ये A11 लिखा है, ये आई नहीं है, राइट। ये मतलब जहाँ से क्वेश्चन पेपर लिया है क्वेश्चन पेपर में ही गलत है, राइट, ध्यान देना यहाँ से, वही तो कह रहा हूँ कभी से इतनी गड़बड़ी कैसे है। तभी ये रियल एंट्री इज द फर्स्ट एंट्री। ये एक मिनट रुक जाइए मैम, यस सी द क्वेश्चन इज, चलो कोई बात नहीं, ऐसे मिस्टेक हो जाते हैं। जस्ट सी हियर, आई जस्ट इरेज दीज थिंग्स एंड करेक्ट इट, नो प्रॉब्लम। जस्ट सी, ये पहले म्यूट कर लो, सारे लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज़, म्यूट योर माइक, एवरीवन जस्ट म्यूट योर माइक। जस्ट सी हियर देयर इज ए टाइपिंग एरर, बेसिकली मैंने ये CSIR के क्वेश्चन पेपर से ही उठाया, फिर भी देखो कितनी बड़ी मिस्टेक है। ये बेसिकली A11 है, राइट, इट इज़ क्लियर, इट इज़ क्लियर, आर यू पीपल गेटिंग माई पॉइंट, दैट द मिस्टेक इज व्हाट, दिस इज द करेक्शन, यू जस्ट करेक्ट इट, ठीक है सोनू जैन। अकॉर्डिंग टू दिस, अगर यहाँ पे AI होगा तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, राइट राइट, द करेक्ट इज व्हाट, इसको करेक्शन थोड़ा आप कर लीजिएगा, A110 है यहाँ पे, ठीक है, पहला एंट्री सिर्फ 0 है, सभी को क्लियर है। अगर पहला एंट्री 0 होगा कोई दिक्कत नहीं, बाकी अगर आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेंगे A110 है, ठीक है, 2x2 की मैट्रिक्स, हाँ ट्रेस भी 0 करना है तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, सेकंड वाला भी 0 लेना पड़ेगा 2x2 में, राइट। देखो यहाँ पे अभी क्वेश्चन सभी को क्लियर है, अब देखो यहाँ से कोई डाउट नहीं है, देयर इज नो डाउट एट ऑल, सभी है ना इधर प्रेजेंट, देखो जस्ट सी नाउ, बेसिकली देयर इज ए करेक्शन इन द क्वेश्चन एंड नाउ लुक अगेन द सेम थिंग, यू विल गेट द राइट थिंग ईच एंड एवरीथिंग। देखो यहाँ से अगर मुझे लेना है 2x2 की मैट्रिक्स, राइट, कंडीशन क्या कहता है, तो कह रहा है पहला आपको A11 आपको 0 लेना, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेना तो यहाँ A ले ले और यहाँ भी A ले ले। आप क्वेश्चन है यहाँ पे मैं कोई और भी एलिमेंट ले सकता हूँ लेकिन नहीं ले पाऊँगा, पूछो क्यों, क्योंकि हमें सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, ट्रेस इज 0, ट्रेस इज 0 तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट तो कोई ले ही नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि अगर नॉन जीरो एलिमेंट 1 लूँगा तो ट्रेस उसका 1 आ जाएगा, जबकि ट्रेस क्या लेना है 0। अरे ट्रेस मीन्स व्हाट, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, इट मस्ट बी 0। तो अगर 0 करना है तो ये तो पहले से कंडीशन दिया है 0 होगा, यहाँ पे हम कोई वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, क्या लेना पड़ेगा, अपने सामने क्या मजबूरी है 0। इट इज़ क्लियर, सो इट्स डायमेंशन इज व्हाट, डायमेंशन ऑफ A22 विल बी व्हाट 1, राइट, क्लियर है। अरे A को कॉमन लोगे तो क्या बेसिस में आया, ठीक है, सभी को क्लियर है, द डायमेंशन इज व्हाट, डायमेंशन इज बेसिकली जस्ट, यस सर, इट इज़ क्लियर। अब चल दो 3x3 की भी लेते हैं, थोड़ा सा वेट करना यार, क्वेश्चन में गड़बड़ी की वजह से हमें अब पूरे चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। नाउ सी, देख रहे हो ना क्या थोड़ी सी सिली मिस्टेक है टाइपिंग में, एंड वी आर फेसिंग लॉट ऑफ थिंग, नो प्रॉब्लम, हो जाता है ऐसी चीज़ें, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा अपने आप पे विश्वास रखो, क्वेश्चन जरूर सही होगा अगर कोई मिस्टेक नहीं है तो। अब देखो अगर मैं 3x3 की मैट्रिक्स लेता हूँ, ये तो पहले से दिया है 0, यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। अब हमें ट्रेस भी 0 करना है तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, अगर मैंने यहाँ पे D लिया तो इसको क्या लेना पड़ेगा -D, राइट। इट इज़ क्लियर, नाउ दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। देखो ये क्वेश्चन में पहले से क्या दिया है, A110, सिर्फ यहाँ A110, इट इज क्लियर, नाउ दिस इज क्लियर। हेलो, आई भी लेते हाँ क्या कह रहे, क्रिएट इसको इक्वल टू 0, A11 हमने 0 ले लिया, ये क्वेश्चन में दिया है, लेकिन हमें सेकंड देखो, एक तो दिया है कि इसके डायगोनल एंट्रीज नहीं दिया है 0, सिर्फ दिया A110 है, और कह रहा है ट्रेस भी क्या हो, ट्रेस इज बिकम 0।
तो अगर मुझे जीरो ले आना है तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, जीरो। अगर मैं कोई भी नंबर डी लिखता हूँ तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस डी, राइट। तभी तो ये पॉसिबल है। इट इज़ क्लियर। सो नाउ द डायमेंशन ऑफ दिस इज व्हाट, 0 A B A D C B C माइनस डी। आप देखो इसके पास 4 इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे, 0 1 1 0 0 0 0 0 0, राइट। प्लस B that is what, 0 0 1, this 1 0 0 0 0 0, right। plus C that is 0 0 0 0 0 1 0 1 0, and the last option if you take D common, in that case 0 0 0 0 1 0 0 0 minus 1, right। it is clear now। how many, ठीक है सोनू जैन, क्लियर है, ठीक है, गुड, वेरी गुड, you have asked the right question at the right time। there is the mistake in the problem। are you people getting my point? इसका mistake कहाँ पे था, सभी को clear है? ये basically this is A11, right, and in the question it is given what, इस क्वेश्चन में AII लिखा है जो कि मिस्टेक है, और मेरे ख्याल से इसमें ये मैंने क्वेश्चन पेपर से उठाया, इसका मतलब जिसने भी इसको लगाया होगा, राइट, उसको सही नंबर मिलेगा। क्लियर है? ये क्या है, A11, इसको सही कर लेना, दिस इज नॉट AII। क्लियर? अभी क्लियर है? अब देखो सबका डायमेंशन आ गया ना, अब मैच करेगा। और एनीबडी एल्स, ठीक है, नेहा सिंह सर, और कहाँ गया, राकेश, राकेश देखो राकेश, किसी चीज़ को हम ज़बरदस्ती सेटिस्फाई ना करें, राइट, क्लियर। किसी चीज़ को ज़बरदस्ती ऑप्शन को आप करेक्ट करने की कोशिश न करिए, कोई बात नहीं, 2 minutes we have wasted but we have learned lot of thing। clear? it is clear to everyone? अरे हाँ ना बोलो यार, क्लियर है। देखो जब भी CSIR का क्वेश्चन आपको गलत लगे, जो क्वेश्चन आपको 100% कई तरीके से चेक करो गलत लगे, अगर यहाँ AII होता है, इन दैट केस ऑल द ऑप्शंस आर रॉन्ग। तो जब भी आपको क्वेश्चन गलत लगे जरूर टिक करके आओ। पता है ना CSIR का रूल, जो क्वेश्चन गलत होता है और जिसने क्वेश्चन को अडॉप्ट किया बस उसी को नंबर मिलता है। पता है कि नहीं ये बात सभी को? जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन गलत हो गया और आपने उस क्वेश्चन का कोई ऑप्शन नहीं लगाया है तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर क्वेश्चन गलत है लेकिन आपने किसी भी ऑप्शन को क्लिक किया है, सो यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर दैट क्वेश्चन। यू नो दिस रूल आर नॉट? अरे हाँ ना, सब शांत क्यों इतना हो गए? अभी क्लियर है सभी को? अभी भी कोई डाउट है? सो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है पता है ना, मैंने आपको बताया, कभी भी किसी चीज़ को ज़बरदस्ती सही कराने की कोशिश ना करिए। बात क्लियर है? अपने आप से कॉन्फिडेंस रखो। मैं कॉन्फिडेंस में था 100% कि अगर कुछ भी होगा देख लेंगे, भले क्या हो, राइट। इसी नाते मैं ये नहीं कहा कि ये गलत है, पहले मैंने क्वेश्चन को फिर से क्रॉस चेक किया, और मेरे सामने एक देखो, मेरे पास तो कई बुकें हैं ना इसकी, तो जब मैंने दूसरे क्वेश्चन सेट में देखा तो ये गलत टाइपिंग है। ठीक है, सभी को क्लियर है? आप इसको सही कर लेना। ये है क्वेश्चन जून 2012 का क्वेश्चन। चलें एक क्वेश्चन और दे, इसी तरीके का है वो भी क्वेश्चन। चलिए अब एक एंटी सिमेट्रिक भी क्वेश्चन आया। ठीक है सोनू जैन, गुड, वेरी गुड। अगर शायद आप नहीं बोलते तो मैं इस क्वेश्चन को इतना डीपली चेक भी नहीं करता और 2x2 को चेक करके आगे निकल जाता। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी नाते मैं हमेशा कहता हूँ मेरे ऊपर भी बिलीव ना करो, कभी कभी खुद से बैठ के करो कि सर जो बोल रहे हैं वो सही है, ऐसा तो नहीं कि 10 काउंटर एग्जाम्पल अलग अलग लो और वेरीफाई करने की कोशिश करो और मुझे भी चैलेंज करो। आई एक्सेप्ट ऑलवेज द चैलेंज, राइट। तभी तो मेरी भी लर्निंग होगी अगर कहीं कोई मिस्टेक मेरे साइड से हो रही। सो देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो अगला क्वेश्चन है सेम टाइप का है। द डायमेंशन, दिस क्वेश्चन इज आल्सो आस्क्ड इन CSIR बट लिटिल बिट डिफरेंट। डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया है, yes, all symmetric matrix, right। of order n,
ऑफ ऑर्डर n, और यहाँ भी दिया हुआ है n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, राइट, विथ रियल एंट्रीज। अब देखो इसमें आगे कुछ नहीं कहा है, विथ रियल एंट्रीज एंड ट्रेस इक्वल टू 0 एंड ट्रेस, इसमें सिर्फ एक कंडीशन दिया है, देख रहा है ना, ट्रेस इक्वल टू 0। रुमा मैम ठीक है, आप ही कह रही थी ना कुछ, रुमा मैम ठीक है, हम कभी भी क्वेश्चन को जबरदस्ती नहीं करेंगे, राइट, जो सही है बस वही लगाएंगे। अगर हमें गलत लग रहा है अंदर से एकदम कॉन्फिडेंस रखो कि ये गलत है, ठीक है, अंदर से एकदम कॉन्फिडेंस कि मैंने 2-3 इसी तरीके से मैंने दोनों तरीके से वेरीफाई करने की कोशिश किया। ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता है कि मैं जबरदस्ती किसी क्वेश्चन को बनाऊं, सही करूं या इनकरेक्ट करूं। n स्क्वायर प्लस n, एक CSIR का जो क्वेश्चन बनता है पता है ना उसको बनाने में कितने महीने लगते हैं। देयर आर ए डिफरेंट एरिया ऑफ व्हाट रिसर्च, हर एरिया डिफरेंट एरिया है रिसर्च का। तो एक आपके पास एक जो रियल एनालिसिस के पेपर बनाने वाले होते हैं उसमें 10 प्रोफेसर मिलके सिर्फ 20 क्वेश्चन बनाते हैं 6 महीने में। उनकी जॉब यही है, उनको 2.5 से 3 लाख रुपए गवर्नमेंट इसी नाते उस प्रोफेसर को देती है जो CSIR में बैठे हैं, सिर्फ उनको 6 महीने में 20 क्वेश्चन बनाने हैं। हाउ मेनी क्वेश्चन, ओनली न 20 में नहीं 16 क्वेश्चन बनाने हैं। मोर देन 20 प्रोफेसर्स आर देयर ओनली वन जॉब, क्या करना है उनको, 16 क्वेश्चन बनाने हैं, कितने महीने में, अगले 6 महीने में। लीनियर अलजेब्रा का इसी तरीके से 10 to 15 प्रोफेसर होते हैं जिनका काम है सिर्फ ये 16 क्वेश्चन बनाना, उनका अगले 6 महीने में 6 मंथ में सिर्फ 16 क्वेश्चन बनाने हैं। और ऐसा क्वेश्चन बनाना है आज तक कहीं आपने क्वेश्चन शायद ना देखा हो, ऐसा क्वेश्चन उन्हें बनाना है, राइट। तो इतना इंश्योर होता है कि बहुत रेयर केस होता है गलत होने के चांसेस, अगर टाइपिंग एरर या कुछ ना हो। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, और सभी ये भी क्वेश्चन CSIR का ही है। आप इस क्वेश्चन में भी जरा वेरीफाई करके देख लेना भाई। सो अगेन आई जस्ट गिव यू ऑल चलो इस क्वेश्चन को भी करके बताओ क्या पॉसिबिलिटी। एक तो डायरेक्ट आपको रिजल्ट ही पता है, राइट, यू नो द रिजल्ट। अच्छा एक मिनट रुके रहना, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, लास्ट वाला ऑप्शन सभी को दिख रहा है, रुक जाओ थोड़ा सा। यस, नाउ आई थिंक इट इज क्लियरली विजिबल। एक तो आपसे फार्मूले से पता है, ठीक है सोनू जैन, और सेकंड वे इज व्हाट, सेकंड वे क्या करेंगे, काउंटर एग्जांपल लेके करेंगे, काउंटर एग्जांपल, ठीक है। डांगर कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो कुछ लोग, स्वर्णा इट इज क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको समझने में। यस सर क्लियर है, आंसर सी है इसका। ठीक, तनुश्री मैम, रितु मैम, रितु मैम कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा ठीक है, आप कहीं गाड़ी में म्यूट कर लीजिए, ये जस्ट म्यूट कर, म्यूट कर लीजिए, मुझे लग गया आप कहीं ट्रेन में या कहीं पे हैं। ठीक है, सो लास्ट 30 सेकेंड। एक तो पहला आसान है, अभी मैंने आपको बताया फार्मूला कि अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको वाइंड अप कर देते हैं, बहुत आसान सा है। एक तो पहला मैंने आपको बताया कि इफ द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इट इज़ वेरी इजी, उसका क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2, और बस आप देखो कितने कांस्टेंट है, तो एक ही कांस्टेंट दिया, ट्रेस इज 0, सो -1 हो जाएगा, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। पहला तरीका ये है कि यू डायरेक्ट यूज द रिजल्ट। मैंने आपको क्या बताया अभी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया कि द फार्मूला इज डायमेंशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स माइनस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कांस्टेंट, राइट, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कांस्टेंट, तो एक ही कांस्टेंट दिया है, सो n इंटू एन प्लस 1/2 -1। अकॉर्डिंग टू दिस कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइट। और ये सारे ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे, कहीं माइनस का तो कोई सवाल ही नहीं है। और अगर आप चाहें यू कैन ऑल्सो यूज द व्हाट, आप अब देखो यहाँ पे नहीं दिया है क्या होगा,
तो आप 2x2 की मैट्रिक्स लो जिसका ट्रेस 0 हो। तो आप एक काम करना पड़ेगा, अगर यहाँ ए लेते हो तो यहाँ माइनस ए लेना पड़ेगा, और सिमेट्रिक है तो यहाँ बी ले लो, यहाँ बी ले लो। तो इसके अकॉर्डिंग डायमेंशन कितना आ रहा है 2x2 का? देखो अगर इसको आप ओपन करेंगे 2 और यहाँ भी रखो 2 इंटू 3/2 माइनस 1 कितना आएगा 2, राइट। एंड यहाँ से भी करोगे ए कॉमन लोगे 1 माइनस 1 0 0 एंड प्लस बी कॉमन लेंगे देन 0 1 1 0। इसके बेसिस में कितने एलिमेंट हैं 2 एलिमेंट है, राइट। और 3x3 की भी मैट्रिक्स लेके देखो, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ यही लो, 3x3 की भी मैट्रिक्स आप लेके देखिए और उसका भी डायमेंशन देखिए, एग्जैक्टली इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा, राइट। इट इज सर बोलो। इसमें डायगोनल को 0 0 भी तो ले सकते हैं ना? ट्रेस इक्वल टू 0, हाँ ले सकते हो। तो फिर तो ऑप्शन गलत हो जाएगा ना सर? कैसे? पिछले की तरह हो जाएगा ना काउंटर एग्जांपल। इस केस में डायमेंशन कितना आएगा फार्मूले से? अगर फार्मूला लगाते हैं, एक मिनट रुक जाओ आते हैं। देखो एक चीज़ ध्यान दो, क्या नाम है राकेश, आप जो ले रहे हैं वो पर्टिकुलर केस लेने की कोशिश कर रहे हैं, आप 0 0 0, राइट। लेकिन 0 0 0 लोगे, ये उसका एक पर्टिकुलर केस है जहाँ पे सारे एंट्रीज आप 0 ले रहे हो, राइट। आपको लेना क्या है, आर लेना है, राइट। हमेशा हमें जनरलाइज केस में जाना है। अभी आपको बताया कि डायमेंशन लेस देन आर इक्वल टू हो सकता है, मैक्सिमम डायमेंशन इतना हो सकता है, और उससे लेस देन आर इक्वल टू हो सकता है, राइट। इट इज़ क्लियर। तो सोनू राकेश जैन, देखो आप ये जो ले रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम डायमेंशन क्या हो सकता है, रुक जाओ, अगर मैं किसी भी जब सम करता हूँ या जो भी निकालना है, इसका मैक्स जब हम इसमें कुछ भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या कंडीशन लगाते हैं तो ये डायमेंशन लेस देन आर इक्वल टू एन होगा, 9 से ऑलवेज कम होगा, राइट। और जब आप ये रेस्ट्रिक्शन लगाते हो सो n इंटू एन प्लस 1/2 माइनस 1, यही आ रहा है। अगर मैं n की वैल्यू 3 रखता हूँ सो दिस इज बेसिकली व्हाट 3 इंटू 4/2 माइनस 1 एंड दिस इज व्हाट, कितना आ जाएगा 5, यही आएगा ना। देखो 4 3 जा 12/2 6 माइनस 1 5, यही आएगा। अरे हाँ ना बोलो यार। यस सर। अब अगर आप ये कहते हो कि कोई मैट्रिक्स मैं लेता हूँ जिसकी पहले से ही एंट्रीज आप 0 ले लोगे, तो आप कह रहे हो इसको सर पहले से मैं 0 ले रहा हूँ। देखो ये लेना गलत है, पूछो क्यों? उसका रीज़न ये है कि आपने अगर क्योंकि सर रियल एंट्रीज जो हैं वो इक्वल हैं ट्रेस की एडिशन के, तो इसीलिए हम 0 नहीं ले रहे ना। नहीं, रियल एंट्रीज तो 0 भी तो रियल वैल्यूज है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैम दिक्कत क्या है कि ये एक पर्टिकुलर केस है, ट्रेस इक्वल टू 0, यहाँ पे कंडीशन दिया है ट्रेस इक्वल टू 0, आप पर्टिकुलर केस लेके चल रहे हैं, ठीक है राकेश। ट्रेस अगर ऐसे लोगे तो हमें ट्रेस तो ऐसे भी ले सकते हैं ना, a माइनस ए बी, इस तरीके से भी कुछ केस बना सकते हैं, राइट। तो देखो जब आप पर्टिकुलर केस लेके चलो, थोड़ा सा 0 को अवॉइड करो, ठीक है, क्लियर है राकेश? 0 को अवॉइड करने की कोशिश करो। अदरवाइज अगर आप कहो, अगर आपसे पूछा जाए डायमेंशन ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, देखो अगर आपसे कहा जाए डायमेंशन ऑफ 2x2 मैट्रिक्स तो कहोगे सर इसका तो डायमेंशन 0 होगा। तो ये कब, ये भी तो 2x2 की मैट्रिक्स है, मुझे बताइए ये 2x2 की मैट्रिक्स है कि नहीं? मैं कहूँ x सारी वैल्यूज रियल है, x a b c d सारी वैल्यूज रियल है, तो इस कंडीशन में तो ये 0 आ जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं लेना है, हमें जनरलाइज केस में जाना है। पहले हमें लेना है कि सारे डिस्टिंक्ट हो, राइट, इफ दर्स ऑल आर डिस्टिंक्ट। ये फार्मूला मैंने आपको क्यों पढ़ाया है, यहाँ पे देखो कहाँ गया, एक मिनट रुके रहना। हाँ, ये हमने क्या पढ़ा है, देखो जैसे ही कांस्टेंट लग रहा है तैसे ही माइनस होना शुरू हो रहा है, राइट। इट इज क्लियर। आपको 0 को थोड़ा सा अवॉइड करना है,
जीरो क्रिएटर भी है और प्रॉब्लम क्रिएटर भी है, तो जीरो को थोड़ा सा अवॉइड करो, ठीक है? इट इज़ क्लियर? हेलो, अरे ठीक है भाई, चलिए ठीक है, इस पे और भी डिस्कशन करेंगे। अच्छा टॉपिक मिल गया है, बहुत बढ़िया। आपको जो भी ओपन डिस्कशन है, यू जस्ट कम एंड वी डिस्कस, तभी आपकी लर्निंग होगी, राइट? इट इज़ क्लियर? चलो इसके बाद शाम को मिलते हैं रात में 10 PM पे, ठीक है ना?